Welcome students, 10th class, second unit, acid, bases and salt. And today's topic is the bleaching powder. Now student, the chemical formula of bleaching powder is CaOCl2, means this is calcium oxychloride. It is also known as chloride of lime. And why it is known as chloride of lime? Because it is prepared from the slaked lime. When we passes the chlorine through the dry slaked lime, then there is the preparation of the bleaching powder. As we all know, during the chloralkali process, for the preparation of NaOH, we use the method that is named as the chloralkali process. There is formation of chlorine as a side product. We must use that chlorine for the preparation of bleaching powder. And we write the reaction in that form. CaOH twice passes the chlorine gas that result into the formation of bleaching powder with water as a side product. This is the slaked lime, this one. And we take it as dry slaked lime. Now we talk about the properties of the bleaching powder. First property, it is white powder form. Second one, it has the strong smell of chlorine because it contains chlorine. Third, it is soluble in the cold water. लेकिन हमेशा इसमें एक small portion कैसा रह जाता है, insoluble, and this is due to the presence of lime in it. And one of the most important property is the reaction with acid. This is important with respect of 1 or 2 marks. What happened when bleaching powder react with acid? Generally, the bleaching action of bleaching powder is based on that reaction. Means उसकी reaction जो है acid के साथ वही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, उसके ब्लीचिंग एक्शन के लिए. वाई? बिकॉज कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 या एनी अदर एसिड लाइक HCl. In that manner, similarly, if we write the reaction with dilute HCl, then again the reaction like this. In this reaction, there is the release of that free chlorine, and that chlorine is responsible for the bleaching action. And this chlorine release is responsible for bleaching action. It means we can say that the real bleaching agent in the bleaching powder is the chlorine. And how that perform the bleaching action? Now the bleaching action of chlorine is due to its oxidizing property. And how that oxidizing property is indicated? When the chlorine come in contact of moisture, then it liberated HCl and HClO. This is hypochlorous acid, and this hypochlorous acid is quite unstable. It means it further undergo the dissociation and gives HCl with the release of oxygen, and this one is the nascent oxygen. Nascent oxygen means atomic form of the oxygen, highly reactive form of the oxygen. And how this nascent oxygen react or causes the bleaching action of the chlorine? When this nascent oxygen come in contact of the colored substance, then it causes the oxidation and the colored substance becomes colorless. Means जब कोई भी colored substance किसके contact में आता है, इस nascent oxygen के contact में, तो वो कलरलेस हो जाएगा. और वो कलरलेस क्यों हो जाएगा?
क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगी उसकी ऑक्सीडेशन। तो हम इस रिएक्शन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? colored substance come in contact of that nascent oxygen। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो हम कहेंगे ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरीन। जो कब रिलीज होती है? जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी भी एसिड से। और अगर हमसे कोई पूछता है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन के बारे में, then we are able to write these three reactions, and these reactions are quite important. Now the topic is the uses of bleaching powder, कि ब्लीचिंग पाउडर के डेली रूटीन में क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी हमने रिएक्शन की, तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं? दैट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। सेकेंडली, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है उसका हम कहाँ पर बेनिफिट लेकर चलते हैं? जनरली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जैसे अगर कॉटन को ब्लीच करना है तो वहां पर हम किसको प्रेफर करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को। सेम इन द पेपर इंडस्ट्रीज टू ब्लीच द वुड पल्प। जो वुड पल्प है उसको भी ब्लीच करने के लिए हम किसको प्रेफर करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को। इन द लॉन्ड्री, जहां पर कपड़े धुलते हैं, तो कई बार क्या होता है कपड़ों पर काफी डार्क स्टेन या दाग लग जाता है, उसको रिमूव करने के लिए लॉन्ड्री में ब्लीचिंग यूज की जाती है। और क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए किसको प्रेफर किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। मीन्स जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको डिसइंफेक्टिंग करने के लिए भी हम किसको प्रेफर करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को। बिकॉज द नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज्ड फ्रॉम HClO, जैसे अभी रिएक्शन में आपको दिखाया था, वो किस में हेल्प करेगा? दैट हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन इट एंड रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्टेंट होते क्या है? विच आर यूज टू किल द जर्म्स और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जनरली ये डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हम इसको प्रेफर करते हैं। एंड अदर यूजेस फॉर मेकिंग द वुल अनश्रिंकेबल। जो वूल आती है, ऊन आती है, उसको अनश्रिंकेबल बनाने के लिए भी हम किसको प्रेफर करते हैं? वी प्रेफर द ब्लीचिंग पाउडर। एंड अदर यूज दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग CHCl3, this is the chloroform. Chloroform is an anesthetic one. क्या कहा मैंने यहाँ पर? एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया वो होता है जो किसी को बेहोश करने के लिए जनरली दिया जाता है। तो ये किसको बनाने में भी प्रेफर किया जाता है? क्लोरोफॉर्म को। नाउ स्टूडेंट, इट्स टाइम फॉर डिड यू नो, मीन्स द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द ब्लीचिंग पाउडर। तो फर्स्ट इज द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट। और वो परमानेंट होता क्यों है? क्योंकि वहां पर किसकी वजह से उसका ब्लीचिंग एक्शन? उसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से। और अगर हम किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं देन इट इज द परमानेंट एक्शन। सेकेंड, आपके पास लिखा मैंने यहाँ SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड भी कैसे बिहेव करता है एज अ ब्लीचिंग सब्सटेंस और द ब्लीचिंग एजेंट। तो इसका जो आपके पास ब्लीचिंग एक्शन होता है वो कैसा आएगा आपके पास? टेम्परेरी। रीजन, इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो किसकी वजह से है? रिडक्शन एक्शन की वजह से। मींस अगर हम इसको रिएक्शन की फॉर्म में दिखाएं तो आपके पास क्या है यहाँ पर? SO2। जैसे ही वो किसके कांटेक्ट में आएगा? मॉइस्चर के कांटेक्ट में। तो यहां से वो क्या बनाता है? दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड देयर इज रिलीज ऑफ H एटम। मींस देयर इज द रिलीज ऑफ nascent hydrogen, and this nascent hydrogen is responsible for its bleaching action. How? When this nascent hydrogen come in contact of the colored substance, then it get converted into colorless substance. अब इसमें तो क्या है, जैसे ही ये हाइड्रोजन उस कलर्ड सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा वो उसको क्या कर देगा? कलरलेस, बिकॉज ऑफ इट्स रिडक्शन। लेकिन
जैसे ही वो कलरलेस सब्सटेंस दोबारा से किसके कांटेक्ट में आएगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के, तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, और वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कलर्ड सब्सटेंस में। तो जनरली जो ब्लीचिंग एक्शन है वो SO2 का कैसा है, टेम्परेरी। क्यों होता है टेम्परेरी, क्योंकि इसका रिडक्शन एक्शन है, और रिडक्शन एक्शन को आप रिवर्स कर सकते हो बाय यूजिंग द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर SO2, ये एक पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, और इसकी डिटेक्शन कैसे की जाती है, अगर हम इसको किस में से पास कर देते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में से, तो इसका जो कलर है पोटाशियम परमैंगनेट का वो क्या हो जाएगा, कलरलेस, मीन्स उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो उस एक्सपेरिमेंट से हम किसकी डिटेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, वी डिटेक्ट द SO2। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है वो एक तरीका है किसको स्टोर करने के लिए, क्लोरीन गैस को, बिकॉज गैसेज आर वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर। तो अगर हमें क्लोरीन गैस को स्टोर करना है तो हम किसके फॉर्म में उसको स्टोर करके रखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।